Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine and doing your work regularly. Welcome to your GK class. Today we will do page number 5, that is values are invaluable. First is given to you that you give your old books, pens, pencil and school bag to a poor student. That means it shows your kindness. You have to unjumble the values. So first answer will be kindness. Second is along with other students of your school, you visit an old people home and give gift to the old people staying there. This shows your empathy. Which values you are showing? Empathy. Next is for the school competition, you design a beautiful poster highlighting the theme say no to school child labor. If you are preparing or design a beautiful poster, this shows your creativity. What is this? Your creativity. Next is there is a fight between two of your friends. You pacify them and encourage them to be friendly. This shows your problem solving nature. Next is during the examination, your friends ask you to see his answers and copy them in your answer sheet, but you refuse. This shows your honesty. Which values are you showing here? Honesty. Next is you, along with other students, decorate your class display board. You are helping your friend, so this shows cooperations. This shows your cooperative value, cooperative nature. Your teacher is absent, but you manage your class and ask your friend to maintain self control and do their learning work. This shows discipline. Which values are showing you? Discipline. You lead a rally around the school area to spread awareness about planting trees and caring for the environment. If you are conducting a rally, then it shows leadership quality. Which quality is? Leadership. Along with your friends, you clean up your classroom, school library, corridors, and make them spike and span. This shows cleanliness. Which value? Cleanliness. You make a timetable and devote regular time to study each and every subject. This is your time management value. Which value are you showing here? Time management. वर्ड्स अनजम्बल किए बेटा, आपने वर्ड्स को अरेंज करके राइट किया है इसके अंदर. नेक्स्ट इज पेज नंबर 6. वर्क इज वर्शिप. वट यू हैव टू डू इन दिस? आई ट्रांसलेट वट इज सेड व्हेन पीपल डू नॉट स्पीक द सेम लैंग्वेज. ट्रांसलेट बेटा क्या होता है, कई बार कुछ लोग ट्रांसलेट करते हैं वर्ड्स को, मतलब जिनको एक से ज़्यादा लैंग्वेज आती है. फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ॉरेन में कोई जब आप न्यूज़ सुनते हो तो उस न्यूज़ को ट्रांसलेटर क्या कर रहा होता है? ट्रांसलेट कर रहा होता है. मतलब एक पर्सन इंग्लिश में स्पीक कर रहा है और दूसरा पर्सन उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा है. और जो पर्सन ट्रांसलेट कर लेता है, जिसको एक से ज़्यादा लैंग्वेज की नॉलेज है, दैट इज़ नोन एज इंटरप्रेटर. what this word call? Interpreter. Next is I test eyesight, prescribe lenses and sell them. This is optician. eyesight को जो टेस्ट करा रहे इसको क्या बोलेंगे? optician. I guide students in the choice of career and encourage good behavior pattern. This shows counselor. what work is this? counselor. काउंसलर काउंसलिंग करते हैं आपके करियर को लेकर के और पॉजिटिव थॉट देना, आपको गुड बिहेवियर के बारे में सिखाना. ये किसका वर्क होगा बेटा? काउंसलर. नेक्स्ट इज आई प्ले रिकॉर्डेड म्यूजिक और वीडियो एंड एंटरटेन ऑन टीवी और रेडियो. दिस मीन्स विच वर्क इज गिवन हेयर? डीजे. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीजे? डिस्क जॉकी. डीजे क्या करता है? आपके लिए म्यूजिक प्ले करता है, आपको एंटरटेन करता है, तो ये डीजे वर्क होगा. आई इंट्रोड्यूस्ड वेरियस एक्ट इन अ लाइव शो प्रोग्राम. दिस इज नोन एज कंपेयर. लाइव शो को कंडक्ट करना, दिस इज नोन एज कंपेयर. आई एम एन एक्सपर्ट एट ब्यूटीफुल एंड आर्टिस्टिक राइटिंग. दिस इज नोन एज कैलीग्राफर. कैलियोग्राफी बेटा जो आपको लास्ट में दिखाई दे रही है ना, एक राइट करना, मतलब कईयों की राइटिंग स्किल्स इतनी अच्छी होती है कि वो अपने वर्ड्स को बहुत डिफरेंट वे में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इसको बोलते हैं कैलियोग्राफी. एंड इस वर्क को बोलेंगे कैलीग्राफर. कैलीग्राफर क्या करता है? ब्यूटीफुल राइटिंग करेगा, राइट करता है वो. आई डायग्नोज एंड ट्रीट मेंटल इलनेस.
तो कौन सा वर्क होगा? साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट क्या करते हैं बेटा? मेंटल इलनेस को ट्रीट करते हैं, जो लोग मेंटली डिस्टर्ब होते हैं उनको ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट इज आई करेक्ट स्पीच डिसऑर्डर, दिस वर्क इज नोन एज अ स्पीच। आई मेक स्पीच थेरेपिस्ट, दिस इज नोन एज अ स्पीच थेरेपिस्ट, जो स्पीच डिसऑर्डर को करेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज आई मेक मैप्स, जो मैप बनाते हैं इस वर्क को क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर क्या करते हैं? मैप बनाते हैं। आई राइट एंड कंपाइल डिक्शनरीज, डिक्शनरी को जो कंपाइल करते हैं, डिक्शनरी राइट करते हैं, दैट इज नोन एज लेक्सिकोग्राफर, दिस वर्क इज नोन एज अ लेक्सिकोग्राफर। आई एडवाइज द इंश्योरेंस कंपनी एंड कैलकुलेट रिस्क प्रीमियम्स, so this work is a actuarist. Next is I stuff animal skins to make them look like real animals. एनिमल स्किन को इस तरह से स्टफ़ करना कि वो एनिमल्स रियल लगे, एंड दिस वर्क इज़ नोन एज अ टैक्सीडर्मिस्ट, दिस इज़ नोन एज अ टैक्सीडर्मिस्ट। नेक्स्ट कम टू पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 पे बेटा आपको जेंडर बताना है, एंड यू डू दिस पेज वेरी इजीली। पोस्ट मास्टर, तो मास्टर का क्या होता है बेटा? मिस्ट्रेस, तो इट्स आंसर विल बी पोस्ट मिस्ट्रेस। नेक्स्ट इज मैन सर्वेंट, और मैन का क्या होगा? मेड, सो आंसर विल बी मेड सर्वेंट। नेक्स्ट इज स्टंट मैन, मैन का होता है वीमेन, तो इसका क्या हो जाएगा? स्टंट मैन, स्टंट वुमेन। नेक्स्ट इज फ्योंसी, फ्योंसी का सेम फ्योंसी रहेगा, बट इसमें सी ई गिवन है एंड फ्योंसी में डबल ई आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट इज प्रोप्राइटर एंड इट्स जेंडर विल बी प्रोप्राइट्रेस। नेक्स्ट इज बैचलर एंड इट्स आंसर विल बी स्पिंस्टर। नेक्स्ट इज एम्बेसडर, एम्बेसडर क्या होता है बेटा? फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखते हो कुछ एडवर्टाइजमेंट आती है जिसमें पर्टिकुलर पर्सन ही वर्क करते हैं, जैसे पोलियो ड्रॉप्स की ऐड आती है तो उसमें अमिताभ बच्चन बताते हैं कि इस डे को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाएंगी, तो मतलब इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है? अमिताभ बच्चन होंगे पोलियो के। ऐसे ही बहुत सारी डिफरेंट एड्स आती हैं एडवर्टाइजमेंट, तो वो कहलाते हैं एम्बेसडर, तो इसका क्या होगा? एम्बेस्ट्रेस। नेक्स्ट इज लेट, इसका होगा लेस। कॉमेडियन, कमेडियन स्पेलिंग चेक करो, COMEDIENNE। नेक्स्ट इज शोफर, तो इसका आंसर होगा शोफ्रेस। दीज आर करेक्ट जेंडर इन साइन ऑफ गुड वोकेबलरी। लास्ट इज पेज नंबर 8, global language. As you know that English is a global language and it has a number of words. ग्लोबल लैंग्वेज मीन्स बेटा पूरे यूनिवर्स में जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है पूरे ग्लोब पे, तो वो है इंग्लिश। सम वर्ड्स आर गिवन टू यू एंड यू हैव टू टेल देयर मीनिंग। फर्स्ट इज एडहोक, एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडहोक? मीनिंग ऑफ एडहोक इज़ अ फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज़, meaning of ad hoc is for a particular purpose. Next is alma mater and its meaning is school college attended. Next is CV, curriculum vitae. curriculum vitae क्या होता है बेटा? जब आप किसी जॉब के लिए जाते हो तो आपको अपना CV लेके साथ जाना पड़ता है। CV मीन्स करिकुलम विटे, दैट मीन्स जिसके अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपने जो स्टडी की है सारे डॉक्यूमेंट्स लाइक 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जितनी भी डिग्री आपने अचीव की हैं, दैट इज़ नोन एज योर CV, दैट इज़ करिकुलम विटे। एंड इट्स आंसर विल बी आउटलाइन ऑफ एजुकेशंस और करियर। अपने करियर के लिए जो आप शो करते हो अपने एजुकेशन के बारे में, दैट इज़ नोन एज CV। नेक्स्ट इज़ ETC एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ETC? सो ऑन। जैसे आप राइट करते हो ना, कुछ भी एग्जांपल देते हो लाइक प्लांट्स एनिमल्स, एंड लास्ट में राइट कर देते हो ETC, एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ETC? सो ऑन। नेक्स्ट इज द एनोडोमाइनी
and its answer will be in the year of Lord. Next is vice versa. Meaning of vice versa is other way round. Vice versa, for example, if you are saying that according to Newton's third law of motion, for every action there is equal and opposite reaction, and it's vice versa. Vice versa means उसका opposite भी true होगा. तो vice versa का आंसर क्या होगा बेटा? Other way round. Next is Homo sapien, and its answer will be human beings. Human beings का other name जो है वो क्या है? Homo sapiens. Next is per capita. Per capita means each person. इंग्लिश लैंग्वेज में ईच पर्सन को क्या बोला जाता है? पर कैपिटा. पर एनम आप मैथ्स में भी यूज़ करते हो ना, पर एनम. दैट मीन्स ईच ईयर, मतलब एवरी ईयर. एनम मीन्स ईयर एंड पर मीन्स एवरी. एवरी ईयर के लिए हम वर्ड जो यूज़ करते हैं दैट इज़ पर एनम. नेक्स्ट इज बोनाफाइड, एंड इट्स मीनिंग इज genuine, you can say. This is a genuine problem. Next is numero uno, and meaning of numero uno is number one. Next is adios, and its meaning is goodbye. Next is eureka, and meaning of eureka is I have got it. Next is adieu, and it means goodbye. Last is bon voyage, and its meaning is बेस्ट ऑफ जर्नी. मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हम बेस्ट ऑफ जर्नी वर्ड बोलते हैं तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं? बोन वोवेज. सो टुडे योर वर्क इज़ यू हैव टू डू पेज नंबर 5, 6, 7 and 8. Do page number 5, 6, 7 and 8 and learn these page also. Thank you beta. Have a nice day.